Good morning, students. In the last chapter, we already seen that related to the chain device. Yeah, there are so many different structures. We can convert them into active into passive voice. Yeah, last time already we discussed about such a things. Whenever we want to speak in English, we are always going to use them in a passive construction. Yeah, it is very impressive part. If we want to make them into passive voice, so we have to learn the so many different structures. Already we seen that when we have to use be, then been. Now we are going to learn today, and that is being. So how we are going to use it, just pay attention here. So if there is a verb plus ing, remember this. If in the sentence there is verb plus ing, then we have to use being. So it is playing a very important role. I already told you about the such a things, and that is, if main verb is there, then we have to use be. Keep it in mind. Be is the main form. If there is main verb, then we have to use be. If there is perfect verb, means the third past participle of the verb is there, then we have to use their been. Okay, and then last one is, and that is verb plus ing, then we use being. So in the passive construction, in the active construction, you will find such a things. And what about the passive sentences? You will find be, been and being. So what are their important role? Be always shows that there is something simple action. Okay, there is simple action, and been shows that there is the perfect tense. Yeah, and being shows that there is something continuous. So we are talking about the action. Whatever the action present in the sentence, it is always in simple. If it is going on, it means that there is continuous, and if it is completely, it is just completed, it shows that there is perfect tense. So these are the very important role. So find out, you will see that in active voice you will find such a kinds of the words, and in the passive voice you will find such a kinds of the words. It shows simple, perfect and continuous. हाँ, हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, हमने ये देखा था, अगर सेंटेंस में मेन वर्ब आता है तो इसका मतलब है वहाँ पे जो टेंस है वो सिंपल है, और इसलिए हम पैसिव वॉइस में इसको बी यूज़ करते हैं. वो वर्ड्स कौन से हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शाल, शुड, विल, वुड एंड मस्ट. दीज आर द वर्ड्स जो है उसके सामने हम पैसिव करने के टाइम बी लगाते हैं. यस, कैन बी, मे बी, शाल बी, शुड बी, जस्ट लाइक दैट. एंड बिन है मतलब इसका मतलब होता है परफेक्ट टेंस, मतलब परफेक्ट एक जो है उसमें हम जनरली 3 वर्ड्स यूज़ करते हैं. 3H मैंने लास्ट टाइम बताया था, हैव, हैज़ एंड हैड. पैसिव करते समय हैव बीन, हैज़ बीन एंड हैड बीन ऐसा यूज़ किया जाता है. और अब आज हम लोग देखेंगे बीइंग को कैसे यूज़ करते हैं. ओके, सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स, सो इट विल हेल्प टू जस्ट क्लियर द आइडिया. क्या होता है, सिंपल टेंस का भी देखा हमने, परफेक्ट का भी देखा, भी कंटिन्यूस टेंस में किस तरह से सेंटेंस बनाते हैं. फॉर एग्जांपल, उसके पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं. फॉर्मूला अपना क्या है, पैसिव वॉइस का हम हमेशा सेंटेंस स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट से, देन वी लाइक टू राइट डाउन हियर हेल्पिंग वर्ब, एंड देन उसके सामने हम लोग यूज़ करते हैं बी, उसके सामने फिर थर्ड पास्ट पार्टिसिपल, एंड देन बाय, देन सब्जेक्ट, अदरवाइज इट्स केस. ओके, एक एग्जांपल लेते हैं. ही इज डूइंग हिज जॉब. ओके, ही इज डूइंग हिज जॉब. अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले वी हैव टू अंडरलाइन द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस. या फर्स्ट वन क्या है, सब्जेक्ट है. इज डूइंग क्या है, वर्ब है, और रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड एज अ ऑब्जेक्ट. ठीक है, अभी हम लोग इस हिसाब से सेंटेंस लिखेंगे. पहले उसके पहले तो वर्ब का पार्ट हम लोग जरूर देखेंगे. इज जो है वो है हेल्पिंग वर्ब, या हेल्पिंग वर्ब है.
उसके बाद में डू जो है वो मेन वर्ब है, लेकिन वो आया किसके साथ में, आईएनजी के साथ में, ठीक है। अगर ऐसा सेंटेंस आता है इट मीन्स दैट इट शोज दैट देयर इज समथिंग वर्क गोइंग ऑन, या ही इज डूइंग हिज जॉब, मीन इट इज इन कंटिन्यूअस टेंस, ओके। ऐसा अगर सेंटेंस है उसका पैसिव में कंस्ट्रक्शन करना है तो किस तरह से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग और इस हिसाब से लिखेंगे, यहाँ पे हमको लिखना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा है, हिज जॉब, एच शुड बी कैपिटल ऑफ कोर्स, हिज जॉब। उसके बाद में आता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दिया है, कौन सा है वो, इज, ठीक है। उसके बाद में हमको यहाँ पे बीइंग यूज करना है, बराबर, या यहाँ पे आईएनजी दिया है तो आईएनजी यहाँ पे आया, बी को लग के आईएनजी आया, देख सकते हैं आप, बराबर है, बीइंग आया। उसके बाद में थर्ड पास्ट पार्टिसिपल, अभी इसका लिखना है थर्ड पास्ट पार्टिसिपल, डू का थर्ड पास्ट पार्टिसिपल क्या है, वो है डन, ओके। उसके बाद में हम लोग लिखते हैं बाय, लिख लिया। उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा है, ही की केस क्या है, हिम। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। फिर से एक बार देखेंगे, ऑब्जेक्ट कौन सा है, हिज जॉब। उसके बाद में हम लोग क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, वो है इज, आईएनजी यहाँ पे आया तो बीइंग हो गया, रहा कौन सा वर्ड, डू, डू का थर्ड पास्ट पार्टिसिपल डन, देन राइट बाय, एंड देन सब्जेक्ट ऑफ द केस इज हिम। सो इस तरह से सेंटेंस बनता है, ठीक है। और कुछ सेंटेंस हम लोग देखेंगे ताकि आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत सारे सेंटेंस अगर कौन से भी टेंस में हो, अगर लेकिन प्रोसेस जो है कंटिन्यूस होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, दे वेयर सर्चिंग, they were searching the new idea, ओके। अभी एक ऐसा सेंटेंस है, मान लो, now once again sentence is started with subject, what is it, they were searching, ये जो पार्ट है वो वर्ब का है, कैसे, वो वेयर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद में सर्च क्या है, मेन वर्ब है, उसको लग के कौन सा आया, आईएनजी आया, तो रिमेनिंग पार्ट कौन सा है, न्यू आइडिया, दैट इज ऑब्जेक्ट, ओके। ये है ऑब्जेक्ट। इस तरह से सेंटेंस बनता है। अभी हमको क्या करना है, इस सेंटेंस को इस सेंटेंस में अगर डालते हैं तो कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, द न्यू आइडिया, ओके, द न्यू आइडिया, ओके। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, वेयर। अभी हम लोग यहाँ पे वेयर नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि न्यू आइडिया, आइडिया इज द सिंगुलर, और यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया है, वेयर, इसलिए इसका मतलब है हमको यहाँ पे वॉज लिखना पड़ेगा। इज इट क्लियर, आई होप सो ऑल ऑफ यू गॉट माई पॉइंट। द सेंटेंस इज स्टार्टेड विद द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज द सिंगुलर, द न्यू आइडिया, दैट्स वाई वी यूज हियर वॉज, ओके। उसके बाद में जो वर्ड है, मेन वर्ब है, वो कौन सा है, सर्च है। अभी सर्च का थर्ड फॉर्म कर देंगे अपन, मान लो हमने सर्च का थर्ड फॉर्म कर दिया लेकिन आईएनजी नहीं लिखा तो सेंटेंस में कंटिन्यूटी नहीं दिखेंगे, प्रोसेस कंटिन्यू है ये नहीं समझ में आएगा, इसीलिए ये आईएनजी को हम लोग बी के साथ में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर बच जाता है हमारा मेन वर्ब, कौन सा है, सर्च, उसका थर्ड पास्ट पार्टिसिपल लिखते हैं हम लोग, ठीक है, उसका थर्ड पास्ट पार्टिसिपल आता है सर्च। उसके बाद में हम लोग लिखते हैं बाय, उसके बाद में जो सब्जेक्ट है कौन सा, दे का थर्ड फॉर्म होता है देम। इस तरह से सेंटेंस बनता है। फॉर एग्जाम्पल, द न्यू आइडिया वॉज बीइंग सर्च बाय देम। इस तरह से सेंटेंस बनता है। सो कीप इट इन माइंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू mention one thing, if the sentence is in continue form, then we have to use their being. So once again I would like to draw your attention to these main words, and that is for example, in short, it is there, can, could, may, might, okay, then shall, should, then will, would,
एंड मस्ट। अगर ये वर्ड्स आते हैं तो इनके सामने हमेशा बी को यूज़ किया जाता है, कीप इट इन माइंड। तो ये वर्ड्स कौन से वॉइस में आएंगे? एक्टिव वॉइस में। और ये कौन से वॉइस में आते हैं? पैसिव वॉइस में, ठीक है। उसके बाद में हैव, हैज़ और हैड, ये जो वर्ड्स आते हैं वो एक्टिव वॉइस में आते हैं। पैसिव वॉइस में इनके सामने हमेशा बीन आता है, ठीक है। उसके बाद में अगर किसी सेंटेंस में वर्ब प्लस आईएनजी आता है तो उसके सामने पैसिव कंस्ट्रक्शन करते समय बीइंग को यूज़ किया जाता है। सो इस तरह से ये 3B का पार्ट ध्यान से समझ लो। वंस अगेन 3B, 3B मीन्स बी, बीन और बीइंग। सो keep it in mind, that is very important part. Last time I already told you that, and once again we have finished here. So these are 3 different parts. If you are using some words already in active voice, we can convert them into passive voice, but there are some words we have to use them compulsory. अगर वो वर्ड्स को हम लोग यूज़ करते हैं तो ही एक्टिव का पैसिव वॉइस बनता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज देखा बीइंग को कैसे यूज़ करते हैं। अब तक जो हमने कंप्लीट किया बी, बीन और बीइंग, इनको कैसे पैसिव वॉइस में यूज़ करते वो हमने देखा। सो once again I would like to draw the attention particular to that area. While you are communicate with the other people, if you want to just participate in the communication, so try to use the most of the passive construction. If you are using the passive construction, so it will be more effective. I hope all of you got my point, all of you understood very well. So if you like this video, please share with the all needy students. Thank you very much. Have a nice day.